Hello and welcome to your English language class. Today in this class we'll be taking up chapter 10 from your literature book, and the title of this chapter is The Gift of the Magi, written by O. Henry. So let us start reading from the text. This famous short story by O. Henry is a heartwarming tale of a poor working class couple who sacrificed their most valuable possessions to buy special Christmas presents for each other. So it's a very famous short story. You must have heard about this earlier. Okay, it's written by famous author O. Henry, and it's a real heart-touching story wherein the poor couple, okay, couple means husband and wife. So both the husband and wife, they want to present, or they want to uh, give each other a Christmas present, okay, but they don't have enough money to buy a good enough present for each other. Okay, so let us find out what they do to buy gifts for each other on Christmas. The title likens the couple to the Magi. So the title compares this couple, or this husband and wife, to the Magi. Now, who were Magi? The wise men who brought gifts for the newborn Jesus. सो जो जीसस क्राइस्ट थे, जब वो पैदा हुए थे, तो जो उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आए थे उनके बर्थ पे. ओके, द वाइज मैन, दे वर नोन एज मैजाई, एंड दिस कपल हैज़ बिन compared with those wise men, magi, because they sacrificed what they liked the most, okay, just to give each other Christmas presents. Okay, such selfless sacrifice, the author says, may seem like foolishness to many of us, but it is really the greatest expression of wisdom. और इस तरीके का जो सैक्रिफाइस होता है, जो सेल्फलेस, एकदम निस्वार्थ सैक्रिफाइस जो होता है, वो मोस्टली लोगों को एकदम फुलिशनेस जैसे लगेगा कि इट डजंट मेक एनी सेंस, राइट? बट टू द ऑथर इट इज़ द ग्रेटेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ विजडम. तो ये जो एक दूसरे के लिए ये जो प्रेजेंट्स लेकर आते हैं, उनको कैसे अरेंज करते हैं, इट शोज़ देयर greatest affection and their greatest expression of wisdom. Okay, so $1.87, that was all, and 60 cents of it was in pennies. Pennies saved 1 and 2 at a time by bulldozing the grocer and the vegetable man, until one went red with embarrassment at the miserliness of it all. नाउ अब जो वाइफ है वो क्या कर रही है, वो अपने पास जितनी उसकी सेविंग्स है, उसके पास जितने जमा किए हुए पैसे उन्हें काउंट कर रही है. तो उसके पास कितने पैसे निकलते हैं? $1.87. ओके, तो मे बी ये इंग्लैंड की स्टोरी है, वहाँ पे डॉलर और सेंट्स चलते हैं, या मे बी अमेरिका. ओके, सो अमेरिकन डॉलर में भी. सो $1.87 उसके पास हैं इन टोटल. दीज पेनीज जो कॉइन्स हैं, वो उसने कैसे सेव किए होते हैं? बाय बुलडोजिंग. बुलडोजिंग मीन्स बाय बुलिंग और फोर्सिंग समवन, फोर्सिंग द ग्रोसर, जो डिपार्टमेंटल स्टोर वाले होते हैं, जहाँ से वो घर का राशन वगैरह खरीदती है, डेली नीड्स का जो सामान होता है वो खरीदती है, और जो वेजिटेबल सेलर है उसको वो किसी तरीके से जो बार्गेन करते हैं, या थोड़ा बहुत आपने देखा होगा कभी, जैसे मदर भी आपकी ख़रीदारी करने जाते हैं तो वो हमेशा बार्गेनिंग करते हैं वेजिटेबल सेलर के साथ, फ्रूट सेलर के साथ, या शॉपकीपर के साथ, है ना? तो ऐसे उसने अपने थोड़े थोड़े पैसे जमा किए होते हैं. Until one went red with embarrassment at the miserliness of it all. मतलब कभी कभी खुद को भी शर्म आ जाती थी कि इतना कंजूस कोई कैसे हो सकता है. सो 3 times डेला काउंटेड इट. अब इस लेडी का नाम क्या है? वाइफ का नाम है डेला, और डेला ने जितने पैसे उसके पास थे उनको 3 बार काउंट किया, जस्ट टू मेक श्योर दैट
she's not making any mistake in counting it. Okay, so $1.87, and the next day would be Christmas. सो $1.87 कोई ज़्यादा बड़ी रकम नहीं होती है, बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं होता है टू बाय अ गुड प्रेजेंट फॉर क्रिसमस. There was clearly nothing left to do but sit down and cry. So now Della had nothing else to do and she can't help it but cry. Okay, because she wanted more money, and the next day it was Christmas and she wanted to buy a beautiful present for her husband, but she was helpless. So Della started crying. So Della did it, which makes us realize that life is made up of sobs and smiles. Sobs मतलब जब रोते रोते आपकी सिसकियाँ शुरू हो जाती हैं ना, आप सिसकने लग जाते हो, so that is sobs. So life is made up of sobs and smiles. That means it is made up of happiness and as well as sorrow. So perhaps more of sobs and less of smiles. So शायद दुख जो हैं, जो sorrows हैं, जो sobs हैं, वो ज़्यादा हैं, और smiles और reason to be happy are quite less in our life. Okay. While Della is thus feeling sorry for herself, let us take a look at her home. अब डेला जो है अपने लिए बहुत ज़्यादा दुखी हो रही होती है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ. आई एम बीइंग सो हेल्पलेस. सो द ऑथर सेज, नाउ लेट अस लुक एट हर होम. A small flat at $8 per week. So this was a rented flat. It was quite small and she used to pay $8 per week as rent. It was not bad, but it did look like it needed a lot of furnishing. वो छोटा सा फ्लैट था, ज़्यादा बुरा नहीं था, लेकिन उसमें फर्नीचर की बहुत ज़्यादा कमी थी. ठीक है, उसमें ज़्यादा कोई ख़ास फर्निशिंग नहीं थी. फर्निशिंग मीन्स जो फर्नीचर होता है, कर्टन्स होते हैं, ठीक है, और डेकोरेशन का जो भी सामान होता है वो सब कुछ मिसिंग था. सो इन द एंट्रेंस बिलो was a letter box into which no letter would go and an electric bell that did not work. वहाँ पे एक लेटर बॉक्स भी था उनके घर के बाहर जिसमें कोई लेटर नहीं आता था, और एक इलेक्ट्रिक बेल थी जो काम नहीं करती थी. The letters on the nameplate looked blurred, as if they had shrunk in response to the owner's shrinking income. और जो नेम प्लेट थी उसके जो लेटर्स थे वो भी काफ़ी ब्लर्ड हो गए थे, धुंधले पड़ गए थे, और ऐसा लग रहा था कि वो दिन पर दिन छोटे होते जा रहे हैं. श्रंक इज़ पास्ट टेंस ऑफ श्रिंक. तो वो भी छोटे होते जा रहे थे, जस्ट लाइक द ओनर्स श्रिंकिंग इनकम. जैसे ओनर की जो इनकम थी वो दिन पर दिन कम होती जा रही थी, वैसे ही ये जो लेटर्स थे वो भी छोटे होते जा रहे थे. फ्रॉम $30 to $20 per week. So earlier Della's husband used to earn $30 per week, but now it had gone down to $20 per week. But the owner, Mr. James Dillingham Young, was not loved any less for it. लेकिन उनकी वाइफ जो है मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग, उनका जो फुल नेम है मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग, वो उनकी वाइफ उन्हें तब भी उतना ही अडोर करती थी. Now whenever he came home he was called Jim, and she used to fondly call him Jim, and lovingly hugged by Mrs. James Dillingham Young, already introduced to you as Della, which is all very good. Okay. अब उनकी जो वाइफ थी, जो डेला थी, शी वॉज अ वेरी लविंग वाइफ. ओके, एंड शी वॉज क्वाइट केयरिंग, एंड उनको जो डेला थी उसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसके हस्बैंड की इनकम कम है या ज़्यादा है. वो अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा अडोर करती थी. ओके. डेला फिनिश्ड क्राइंग एंड पाउडर्ड हर फेस. अब डेला काफ़ी देर रोने के बाद चुप हो गई और उसने अपने फेस को थोड़ा पाउडर अप किया, मीन्स थोड़ा हल्का मेकअप किया ताकि ये ना पता चले कि वो रो रही थी. शी स्टूड बाय द विंडो एंड लुक्ड आउट डल्ली एट अ ग्रे कैट वॉकिंग अ ग्रे फेंस इन अ ग्रे बैकयार्ड. सो
अब जो ऑथर है वो उसके मूड को यहाँ पे थोड़ा सा दिखाना चाह रहे हैं, दैट शी इज़ इन अ ग्लूमी मूड, दैट्स वाई उसको सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डल और ग्रेइश ब्लैकिश ऐसी नज़र आ रही हैं। ऐसा होता है ना कभी कभी, जब हम अच्छे मूड में नहीं होते तो सब चीज़ें ऐसे फीकी फीकी नज़र आती हैं। तो उसको भी सारी चीज़ों में से ऐसा लग रहा था जैसे बेरंग सी और एकदम बेजान सी लग रही थी सारी चीज़ें। Tomorrow would be Christmas Day and she had only $1.87 to buy a present for Jim. अब कल क्रिसमस का दिन था और उसके पास सिर्फ $1.87 थे, जिससे उसको जिम के लिए, अपने हस्बैंड के लिए एक अच्छा सा प्रेजेंट खरीदना था. Her Jim. Now many a happy hour she had spent planning for something nice for him. Okay, now she has been planning for quite few days now. She wanted to buy a beautiful present for her husband, but with this less amount, she won't be able to buy a beautiful present. Now, something fine and rare, something worthy of being owned by Jim. अब वो कुछ बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन अपने हस्बैंड के लिए ख़रीदना चाहती थी, जो जैसा उसका हस्बैंड है, इतना केयरिंग, इतना लविंग, वैसा ही एक प्रेजेंट उसके लिए लेना चाह रही थी. लेकिन उसके पास अब पैसे बहुत कम थे. देयर वॉज अ पियर ग्लास बिटवीन द विंडोज़ ऑफ द रूम. पियर ग्लास मीन्स एक टॉल और स्लिम मिरर होता है विंडोज़ के बीच में. Now suddenly Della whirled from the window and stood before the glass. एकदम से डेला जो है थोड़ा सा ऐसे घूम के और ग्लास के सामने आके खड़ी होगी, उस मिरर के सामने खड़ी हो जाती है. Her eyes were shining brilliantly, but her face had lost its color. Rapidly she pulled down her hair and let it fall to its full length. Okay. अब उसका फेस जो है वो काफ़ी डल हो गया होता है सोच सोच के, लेकिन उसकी आइज़ जो हैं उनमें अभी भी वो ग्लिटर होता है. ओके. और सडनली वो क्या करती है, अपने जो उसके बाल होते हैं उनको खोल के और फुल लेंथ, मतलब उनको पूरा अच्छे से खोल लेती है. नाउ देयर वर टू थिंग्स विच द जेम्स डिलिंगम यंग्स टुक ग्रेट प्राइड इन. अब दो चीज़ें थी जो हस्बैंड वाइफ थे, जेम्स डिलिंगम यंग्स, यहाँ पे दोनों हस्बैंड वाइफ को मेंशन किया गया है, और उन्हें दो चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व था. वन वॉज जिम्स गोल्ड वॉच. एक तो थी जिम की गोल्ड वॉच, दैट हैड बिन हिज फादर्स एंड हिज ग्रैंडफादर्स, जो कि उसके फादर की थी और उससे पहले उनके ग्रैंडफादर के पास भी वही गोल्ड वॉच थी. तो मतलब एक इनहेरिटेंस, एक इनहेरिटेड चीज़ थी जो उसने अपने ग्रेट ग्रैंडफादर से उनसे उसको मिली होती है. द अदर वॉज डेलाज हेयर. ओके. और दूसरी चीज़ थी डेला के जो हेयर थे वो भी बहुत सुंदर थे, और उन दोनों को डेला के हेयर पे बहुत ज़्यादा नाज था, बहुत ज़्यादा अभिमान था. ओके. So I hope you've understood till here. Okay, we'll be taking up the rest of the story in the next class. Till then, you just mark all the difficult words till here, till page number 74, and write it in your fair notebook. Okay, and submit your homework by 3 o'clock tomorrow. Thank you for watching this video.